the children collecting garbages, कचरा collect करते हुए आप उनको देख सकते हो. And this is not the only problem of India. It's a problem of the entire world. पूरे विश्व की ये समस्या है. That many children have to leave their home. उनको अपना घर छोड़ना पड़ता है. And many of them to support their family. कई लोगों को अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए ऐसे वर्क करना पड़ता है. उस समय वर्क करना पड़ता है when they need to study, when there is time to do something, get themselves educated. But unfortunately कुछ ऐसी कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से, कुछ many different other problems, due to different other problems, they cannot get access to the education. Rather they have to work day and night to support their family or support themselves. और आप लोग भी अगर शहर में रहते होंगे तो it is a common view if you go through a city. अगर आप एक शहर से गुजरते हैं, so you come across such children. आप इस तरह के बच्चों से जरूर देखा होगा आप लोगों ने, और उनसे कचरा कलेक्ट करते हुए. सो ये जो स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं, इट्स अबाउट वेलू. एक लड़का होता है फ्रॉम चेन्नई, एंड जया एक गर्ल होती है. वेलू एक्चुअली हैड लेफ्ट हिज हाउस. वो अपना घर छोड़ा होता है, घर से भाग गया होता है. ही हैड रन फ्रॉम हिज होम. बट जया वाज ए गर्ल. जया एक गर्ल होती है. शी इज अ रैग पिकर्स. वो कचरा बिनने वाली होती है. So we will study about all this. So before starting the chapters, let's talk about the authors of this chapter. Actually, there are three eminent personalities who are involved in writing this story. Geeta Wolf, she is a poetess, not poetess, no, she is a authoress. Anushka Ravishankar. She is the daughter of the renowned Pandit Ravi Shankar, who is a famous sitar, maestro, sitar वादक जो रविशंकर जी हैं, उनकी बेटी है. Urjit Sen Eljo, graphic designer. So these eminent people are involved in writing this story. एक ट्रेस, इन्होंने एक प्रोजेक्ट है ट्रेस, in which they have written so many stories, given so many examples how to utilize or recycle the wasted material. कैसे जो है wasted material को हम we can bring these wasted material into use. कैसे उसको हम उपयोग में ला सकते हैं, मीनिंगफुल वर्क में उसको काम में ला सकते हैं. सो उसी के ऊपर एक प्रोजेक्ट तैयार किया है ट्रेस. उसी का एक ये हिस्सा है, एक स्टोरी उसमें से. ट्रेस जो प्रोजेक्ट है उसमें से ये लिया गया है, चिल्ड्रन एट वर्क. So as I told you that there are so many reasons that the children have to work at the age of when they need to study, they should study. जब उनको पढ़ना चाहिए उस समय उनको कई सारे काम करने पड़ते हैं अपने को सपोर्ट करने के लिए एंड फैमिली मेंबर्स को सपोर्ट करने के लिए. एंड लेट्स टॉक अबाउट द स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर, चिल्ड्रन एट वर्क. दिस स्टोरी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट्स, पहले पार्ट्स में we will see how Velu, the boy who left his house, he went to Chennai. वो चेन्नई जाता है घर छोड़ के. There was reason why did he leave his house. उसके पीछे एक कारण था. We will discuss in the second part क्या रीजन था कि वो घर छोड़ा था. So first part में हम ये देखेंगे कि what happened to him when he reached Chennai. चेन्नई जब पहुंचता है, अनजाने शहर में पहुंचता है, तो उसके साथ क्या होता है. Who helped him, उसकी मदद कौन करता है, कौन सा वो कैसे सर्वाइव करता है वहां पे. In the second parts we will see how the Jaya rag pickers help the Velu. Velu की मदद जो है एक जया नाम की लड़की होती है वो करती है. So what did she do for him? वो लड़की जो है उसके लिए क्या करती है, we will study in the second part. How she managed to make him eat food. कैसे उसको खाना खिलाती है. where did they go to eat food, कहाँ वो खाना खाने जाते हैं. because rag pickers people even generally don't give them food. उनको खाना भी लोग नहीं देते हैं. so how they manage to eat food we will study in the second part. In third part we will see that the girl Jaya took the Velu to her house. वो अपने घर ले जाती है. so where her house was, कहाँ उसका घर होता है, and which condition they live, किस condition में वहाँ पे लोग रहते हैं. So all these we will discuss, and it's very I'm not showing interesting, but it is something very, we are going to study about the fact
reality of the some of children who are bound to do work at the age when they should do study. उस समय वो काम करने पे मजबूर हैं जब उन्हें स्टडी पढ़ाई करना चाहिए, कुछ बनने का सपने देखना चाहिए, बट दे हैड नो ऑप्शन बट टू डू द वर्क. उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है काम करने का, अगर उनको जीना है तो काम करना ही. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर अडू. आगे बिना देरी की हुए चैप्टर स्टार्ट करते हैं. सो the paragraph start with that as the Kanyakumari Express pulled in at the Chennai Central is the railway station of the Chennai students. So Kanyakumari Express जैसे ही वहां पहुंचती है, so it took some time for Velu to come out from the train. उसको वेलू को जो है ट्रेन से उतरने में थोड़ा सा वक्त लगता है. Still his feet felt wobbly एक वर्ड आया होगा फर्स्ट पैराग्राफ में. उसके पैर जो है अभी भी शेक हो रहे थे, हिल रहे थे, as if he was still in the train or you can say he was still in the moving train. उसके पैर अभी भी शेक कर रहे थे, हिल रहे थे, ऐसे मानो कि वो अभी कहाँ था, वो अभी वो ट्रेन में ही था. So जैसे ही वहां पे उतरता है, so as he was thinking about all these things, जैसे ही वो वहां पे स्टेशन पे जो है वो नीचे उतरता है, so no he heard a sound, ओए out of way मतलब रास्ते से हट जाओ. he saw the porter going through with the loaded trolley लेकर आप लोग प्लेटफॉर्म पे अगर उतरे होंगे तो आप जानते ही हैं कि जो कुली लोग होते हैं वो ट्रॉली से सामान ले आया करते हैं. तो उनके रास्ते में कोई आता है तो चिल्लाने लगते हैं और पहले से ही उसको जो है अवेयर करते हैं, सावधान कर देते हैं. सो वेलू सेव्ड हिमसेल्फ बाय जंपिंग असाइड, वो कूद कर कैसे भी उनके रास्ते से हट जाता है. आफ्टर दैट ही सैट ऑन द बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म पे बेंच होता है वहां पे वो बैठ जाता है. एंड ही आल्सो पुट डाउन हिज बंडल, एक वो बंडल अपने साथ एक पोटरी लिया होता है उसको नीचे रख देता है. he had never seen so many people together. जब वो स्टेशन पे पहुंचता है स्टूडेंट्स, तो जितनी लोगों की भीड़ होती है उसको देखकर वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है, बिकॉज इन हिज लाइफ ही हैड नेवर सीन so many people together. वो अपनी जिंदगी में कभी एक साथ इतने लोगों को नहीं देखा होता है. He saw that only once in his village, once in a year fair was held. मेला लगता था तो मेले में कुछ लोग उसको वहां पे भीड़ उतनी देखने को मिल जाती थी, बट जनरली ही हैड नॉट सीन सो मेनी पीपल्स टुगेदर. उतने लोगों को एक साथ वो देखा वहां पे नहीं था. After that he saw that something was being announced on the लाउड स्पीकर. जैसा कि हम जानते ही हैं व्हाट इज द सीनरी एक्चुअली. अगर हम प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो कैसा वहां का दृश्य होता है, कैसे नहीं है. कुछ लोग इधर उधर कुली इधर उधर सामान लेकर जाते हैं, कुछ माइक में अनाउंसमेंट होता है. सो ऑल दिस सीन all these he is experiencing, सभी इन चीजों को वो अनुभव कर रहा है. He also saw that group of people were sitting on their luggage in front of him. जिस बेंच पे वो बैठा होता है वहां पे देखा कि कुछ लोग हैं जो उसके सामने अपने लगेज पे सामान पे बैठे हुए हैं. एंड दे वर वाचिंग एट द टेलीविजन दैट वाज हैंगिंग फ्रॉम द रूफ. और चूंकि स्टेशन पे हम जाएंगे तो टेलीविजन हमको देखने को मिल जाते हैं जो लटके हुए होते हैं और पीपल उनको देख रहे होते हैं. सो these were the scenario, or you can say these were the scenery at the railway stations. So after that now Velu was little bit tired, he was exhausted. दो वर्ड यहाँ पे आए होंगे स्टूडेंट्स, exhausted and felt misery. So misery का मतलब होता है unhappy and exhausted का मतलब थका हुआ. So Velu को जो थोड़ा सा थकान हो गया था and he was also unhappy because he had come to an unknown city. वो ऐसे जगह पे आया था जो उसके लिए अननोन था, किसी को जानता नहीं था. So he was felt tired little bit, वो थोड़ा सा थका हुआ महसूस कर रहा था. And reason behind it was also that he had left his house 2 days ago. चेन्नई पहुंचने में उसको 2 दिन लगे थे, तो 2 दिन के बीच में जो उसने केवल जो खाना खाया था, इट वाज ओनली पीनट्स, कुछ उसको मूंगफली खाने को मिला था, एंड अ पीस ऑफ जैगरी. जैगरी एक वर्ड आया है, जैगरी जिसे हम गुड़ कहते हैं, तो गुड़ और थोड़ा सा मूंगफली वो खा के रहता है. सो दैट इज इट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन दैट ही वाज फीलिंग लिटिल बिट टायर्ड. सो ये तो हो गई स्टूडेंट्स हाउ ही रीच्ड चेन्नई, व्हाट ही सीन एट द रेलवे स्टेशंस, व्हाई डिड ही फील टायर्ड, क्यों वो थकान महसूस कर रहा था. The first reason was that he had not eaten, he had nothing much to eat. उसके पास खाने के लिए कुछ ज्यादा था नहीं, only peanuts वो कुछ खाया था और गुड़ खाया था. After that before he
got into the train, he had to walk to Kannur. Kannur एक जगह है जहां से जो वेलू को है ट्रेन मिली थी कहाँ जाने के लिए, चेन्नई जाने के लिए. सो टू गो कन्नूर ही हैड टू वॉक ऑन फुट. वो ज्यादातर जो रास्ता था कन्नूर जाने का वो पैदल चल के ही उसने पूरा किया था. तो कन्नूर जाने के लिए वो पैदल चला था. So it was also reason he was tired because of that. And during the travel, यात्रा के दौरान he had managed to sleep near the door on the floor. वो कोशिश किया था कि जो कंपार्टमेंट का जो रेल का डिब्बा है उसके डोर के पास वो सो जाए. बट अनफॉर्चुनेटली देयर वर सम ग्रुप ऑफ पीपल्स, कुछ लोगों का समूह होता है, दे प्लेड कार्ड्स होल नाइट एंड ड्यू टू विच वेलू कुड नॉट स्लीप प्रॉपरली. तो कुछ लोग ताश पत्ती खेलने लगते हैं, पूरी रात खेलते हैं, जिसकी वजह से वेलू जो है वहां पे अच्छे से सो नहीं पाया होता है यात्रा के दौरान. एंड सिंस द वेलू हैड नॉट मनी टू बाई टिकट, वो टिकट खरीदने के लिए उसके पास पैसा तो थे नहीं क्योंकि वो घर छोड़कर भागा था. बट ही मैनेज टू गेट अननोटिस फ्रॉम द आईज ऑफ द टिकट कलेक्टर. टिकट कलेक्टर की वो ध्यान से बच जाता है बिकॉज द टिकट कलेक्टर डिड नॉट गो टू द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट. जो अनरिजर्व कंपार्टमेंट था उसमें जिसमें गोलू बैठा था उसमें टिकट कलेक्टर गया ही नहीं होता है, जाते ही नहीं है, तो इसलिए वो बच जाता है. So these were the things. How did he reach the railway station? How he felt? Why he felt tired? So all of a sudden he heard a noise. Oi, are you new to this town? उसकी एक आवाज सुनाई देती है कि क्या तुम नए हो इस शहर में. Then he opened his eyes and looked around. वो गोलू जो है, वेलू जो है वो आगे पीछे देखता है. He saw that no one was looking towards him. वो देखा कि भाई आवाज तो आई बट जब वो आंख खोल कर देखा तो उसको कोई देख ही नहीं रहा होता है. So after that again he put his head down, वो सिर नीचे कर लेता है. Then again the voice came, एक आवाज आती है that oh what here, इधर देखो. So he turned around, वो पीछे मुड़ता है and he saw that a girl of his own age, उसकी ही उम्र की एक लड़की होती है. She was wearing a banyan which came down to her knee. वो एक बनियान पहनी होती है जो उसके बिल्कुल घुटने तक आ रही होती है. So after that no and he also saw that she was having a sack, एक बोरी जो है उसके कंधे पे होती है, on her shoulder, वह कंधे पर रखी होती है. And she was also picking the glass from the dirty glass or wasted glass from the floors. वो फ्लोर से है कुछ ग्लास को जो है क्या कर रही थी, पिक कर रही थी, कलेक्ट कर रही थी. And she was stuffing into the sack, और वो अपने सैक में जो है बोरी में उसको भर रही थी. So Velu thought that why the girl who is doing such work, who is doing such work should call me. वो मुझे क्यों बोलेगी? Why she will talk to me? मुझसे वो क्यों बात करेगी? So now after that she said to Golu that don't look stupidly. मूर्खों की तरह मत देखो. Just tell your name. What is your name? तुम्हारा नाम क्या है? So now the Golu Yelu tells muttered, एक वर्ड आया होगा आप वहां पे देख सकते हो, मटर, MUTTER. मटर मीन्स होता है स्पीक क्वाइटली, बहुत धीमी आवाज में बोला. So Velu muttered that वेलू उसने अपना नाम बताया कि मेरा नाम जो है वेलू है. So after seeing his bundle, जब उसकी वो बंडल को देखती है, so she thought that he have you run away from your house, क्या तुम घर से भाग कर आए हो? So but Velu didn't want to tell strange girl all his story why he has come from the house. वो भाई strange girl को ये सब बताना नहीं चाहता, क्यों मैं उसे बताऊं जिसको मैं जानता ही नहीं हूं. But here the reason has been mentioned, students. यहाँ पे reason ये mention किया गया है कि why the Velu had left his house. वो अपने घर क्यों छोड़कर आया था. So reason was that Velu and his sisters managed to earn some money, and that money was spent by their father on drinking. वो वेलू और जो उसकी सिस्टर होती थी जो थी वो दोनों लोग कैसे भी करके कुछ पैसा कमाते थे. बट वो पैसा उसके जो फादर हैं, वेलू के फादर, ही स्नैच्ड अवे. वो पैसा क्या कर लेते थे, छीन लेते थे. एंड ही स्पेंट ऑन ड्रिंकिंग. वो किस पे खर्च कर देते थे, अपने शराब पीने पे. सो दैट वाज द रीजन वेलू डिडंट, एंड नॉट ओनली ही स्पेंट मनी ऑन ड्रिंकिंग, केवल वो पैसा जो है शराब पीने पे खर्च ही नहीं करते थे. ही आल्सो बीट हिम, और उसको पीटते भी थे. सो ऑल दिस just Velu could not stand, वो अब सह नहीं सकता था. And so he decided to leave the
house, और यही रीजन था कि वो घर छोड़कर क्या किया था, भाग गया था. आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा. After that, now since uh, the girl was, since a rag picker, says, so he knew so many children. She said to him that if you don't tell me, still I know this city is full of children like you. ये जो पूरा शहर है चेन्नई का तुम्हारे जैसे बच्चों से भरा पड़ा है. Even if you don't tell me, I know that you have no just run away from your house. मैं जानती हूँ कि तुम अपने घर से भाग कर आए हो. So now Velu thought that now since she knows me, अब मुझे जान ही गई है. So Velu somehow tried to show that he was hungry. वो यहाँ पे दिखाना चाहता है कि वो क्या है, hungry. So he did not say directly. वो उससे directly नहीं कहता कि मुझे भूख लगी है. She grimaced his face. Grimace means students जब थोड़ा सा जैसे हमें पेन होता है. So the ugly expression we make on our face. जैसा कि एक ugly expression हम बनाते हैं जैसे दर्द होने पे. So he made such expression on his face. ऐसा ही expression जो है वेलू जो है अपने फेस पर लाता है. तो ड्यू टू विच सी एज्यूम्ड, वो लड़की जो है जया जो है उसको एज्यूम करती कि नाउ ही मस्ट बी हंग्री. सो ही टोल्ड सी टोल्ड हिम दैट इफ यू वांट टू ईट समथिंग, अगर तुमको कुछ खाना है, सो यू कैन नॉट गेट इट बाय जस्ट सिटिंग ग्लमली. एक वर्ड आया होगा ग्लमली, वहां पे आप देख सकते हो इफ यू हैव द बुक. ग्लमली मींस सैडली. अगर तुम ऐसे ही उदास बैठोगे, दुखी पूर्वक बैठोगे, तो तुमको कुछ मिलने वाला खाने का नहीं है. द जया सेड टू वेलू को वो एक सब बातें सुनाती है. सो नाउ शी सेड, फाइनली शी सेड टू हिम दैट इफ यू वांट टू ईट समथिंग कम विथ मी, मेरे साथ आओ. I am going. So she started going from there. She started leaving the station. Station से दूर जाना शुरू कर देती है. Now Velu was in two minds. Velu अब now उसके मन में दो बातें आ रही थी. First, why should he go behind a strange girl whom he doesn't know, जिसको वो जानता ही नहीं है. But second thing was coming in his mind is that now he was in the unknown city, and except that girl who just spoke to him, who had met him, nobody knows him here. उसको यहाँ पे उस गर्ल के अलावा कोई नहीं जानता जो अभी उससे मिली थी. So he was in dilemma, थोड़ा सा वो असमंजस में था. And finally he had no option but to go behind that girl. अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है बजाय इसके कि वो उस गर्ल के पीछे जाए, क्योंकि उसको लगता था कि अब ये गर्ल ही है जो उसकी कुछ मदद यहाँ पे कर सकती है. सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट. ये फर्स्ट पार्ट होता है. दो स्टूडेंट्स हु ज्वाइंट लेट मी आल्सो, मैं उनके लिए एक रिवाइज कर देता हूँ थोड़ा सा जल्दी से इस पूरे पहले पार्ट को. वेलू एक लड़का होता है जो अपना घर छोड़कर भाग गया होता है. जैसे ही चेन्नई स्टेशन पे पहुंचता है तो वो लोगों की भीड़ को देखता है. देयर वर सो मेनी पीपल्स अराउंड द स्टेशंस एंड ही वाज also very tired because he had not eaten so much. वो ज्यादा कुछ खाया नहीं होता. He only had eaten peanuts, jaggery, उसको गुड़ और थोड़ा मूंगफली खाया होता है. And he was also tired because he had to walk on foot to Kannur. उसको कन्नूर पैदल जाना पड़ा था to catch the train for the चेन्नई के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए कन्नूर पैदल जाना पड़ा था. So and he also could not sleep during the travel in the train. यात्रा के दौरान वो ट्रेन में नहीं सो पाया था. And if you have heard the entire first part, you must be knowing why he did not sleep or could not sleep during the travel. क्यों नहीं सो पाया? Because a group of people were playing cards नियर बाय हिम. उसके पास कार्ड्स खेल रहे थे जिसकी वजह से वो सो नहीं पाया था. सो वहां पे स्टेशन पे उसको एक रैग पिकर्स मिलती है, कचरा बिनने वाली लड़की मिलती है जिसका नाम जया होता है. ऑल्दो उसका नाम इस पार्ट में नहीं बताया गया है, इन द सेकंड पार्ट बताया गया है, बट मैंने आपको बता दिया फॉर योर नॉलेज से. सो जया उसको हम मिलती है एंड फर्स्ट वेल्यू इज लिटिल बिट वेलू हैज a little bit hesitation to talk to her. उसको थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, but somehow the girl is able to understand that now this boy has no just has fled from his house. ये जो लड़का है वो अपने घर से भागकर यहाँ पे आया है. और फाइनली वो कहती है कि अगर तुम्हें कुछ खाना है तो मेरे साथ आओ, मैं जा रही हूँ. सो आफ्टर दैट द वेलू also just went behind her. उसके पीछे वो जाता है. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट. मुझे लगता है कि फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया होगा.
If there will be any problem, you can note it down, your doubts, your questions. I will take your question if we will get time. So now we will talk about the second part students. हम दूसरे पार्ट की बात कर लेते हैं. So first part में हमने देखा कि कैसे जो वैल्यू है उसके पीछे जाना शुरू कर देता है. So first when they went outside the station, जैसे वो स्टेशन के बाहर पहुंचे, they had to cross a road. उनको एक रोड क्या करना था, क्रॉस करना था. So the vehicles were coming and going so fast, बहुत तेजी से आ जा रही थी, and the due to smoke and the dust that were coming to Velu, he started feeling dizzy. थोड़ा सा उसको चक्कर आने लगता है वेलू को. So he was just looking for the gap and looking for the moment when he could pass or go through the traffic or he can cross the road. लेकिन उसको कुछ टाइम नहीं था. But anyhow the girl Jaya managed to drag him to the other side of the road. उसको कैसे भी खींच के जो है जया ले जाती है, क्योंकि वेलू तो पहली बार शहर में गया होता है तो उन चीजों से अनजान होता है कैसे रोड क्रॉस करना है. रोड क्रॉस करना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क भी होता है. अगर हम शहर, अगर स्पेशली हम सिटी के कोई रोड को क्रॉस कर रहे हो जहाँ पे हर एक मोमेंट, हर इन एवरी सेकेंड्स द व्हीकल्स आर गोइंग एंड कमिंग. So the Jaya also told him that what you are doing, what you know. He tried to scold him, उसको डांटने की कोशिश करती है. Were you grazing cow in the middle of the road? क्या तुम गाय चरा रहे थे मिडिल रोड के बीच में? If you would be there for a few more moments or few more minutes, you would be chutney. तुम्हारा क्या बन गया होता? चटनी बन गया होता. It means you would have been crushed by a vehicles. तुम vehicles के नीचे आ गए होते. So all this he no this way he tried to scold him, उसको डांटती है. So सबसे पहले स्टेशन से जाने के बाद वो एक रोड क्रॉस करते हैं. Then the Jaya started walking on a ब्रिज. वो ब्रिज पे चलना शुरू कर देती है. देयर वाज अ ब्रिज, और जैसे ही वो ब्रिज से होकर आगे बढ़ रहे होते हैं, सो वेलू स्टार्टेड पीपिंग, वो झांकना शुरू कर देता है नीचे की तरफ, वेयर द व्हीकल्स वर गोइंग एंड कमिंग एंड द रोड वाज आल्सो गोइंग इनटू द सिटी. जहां से रोड जो है कहां पे, रोड जो है कहां पे जा रहा होता है, शहर में जा रहा होता है. सो ही स्टार्टेड लुकिंग एट द बिल्डिंग्स, जो शहर की इमारतें हैं, बिल्डिंग्स हैं, उस पर देखना शुरू कर देता है. आफ्टर दैट they also walked through those some holdings. कुछ holdings लगे होते हैं एडवर्टाइजमेंट के. आप सिटी में देख, अगर आप गए होंगे तो देखते ही होंगे कि पोस्टर एडवर्टाइजमेंट के लगे होते हैं. So they went along all these things, इनसे होकर गुजरते हैं. Now here Jaya just pointed towards a building. एक बिल्डिंग की तरफ पॉइंट आउट करती है. लुक देयर, इफ यू आर हियर एंड इफ यू स्टे हियर फॉर फ्यू मोर मिनट फॉर more minutes, then you would be counting the bars. तुम बार काउंट कर रहे हो. It means she was referring to a building that was actually the central jail students. वहाँ पे एक सेंट्रल जेल भी होता है जिसको रिफर करती है, बट द सेंट्रल जेल वाज रिटन इन तमिल लैंग्वेज, सो द वेलू वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, उसको समझ में नहीं आता. So after that Velu told him that why should I be in the jail, because I haven't done any crime. मैंने तो कोई crime नहीं किया है, क्यों मैं जेल में जाऊंगा. But she told that कि it doesn't matter whether you have committed a crime or not. Crime गलती की हो नहीं की कोई मतलब नहीं है. If you are caught, अगर तुम पकड़ जाते हो, you will be put behind the bars. तुमको जेल में डाल दिया जाएगा. So after that actually they kept walking. आगे बढ़ते रहते हैं and suddenly then after walking of 1 hour, or you can say walk of 1 hour, 1 घंटा टहलने के बाद, आगे बढ़ने के बाद, they reached to a large building. एक बड़े से बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं. that was actually a marriage hall students. वो एक मैरिज हॉल होता है. and there a wedding was taking place. एक शादी हो रही होती है. and the name of the marriage hall is Raj Rajeshwari Prasanna Kalyan Mandapam. This is you can see in your book, Raj Rajeshwari Prasanna Kalyan Mandapam. This is the name of the marriage hall, and the name of the groom is, the दूल्हे का नाम होता है जिसकी वहां पे शादी हो रही होती है, is Vijay Vinayagan. The name of the ग्रूम, ये दूल्हे का नाम है, एंड ब्राइड का नाम होता है रानी. इन दो लोगों की वहां पे शादी हो रही होती है मैरिज हॉल में. सो दे रिच देयर एज ही सॉ द cars park outside the marriage hall and people inside. So Velu thought that this is the place, now we will eat food. बहुत अच्छे से उनको क्या मिलने वाला है, खाना मिलने वाला है. So he asked out of curiosity, और उत्सुकता से पूछता है जया से कि is this place where we are going to eat food, क्या यही है जगह है जहां हम खाना
खाने जा रहे हैं. Then she tells that okay wait, hope we will get food here. So she also noticed a car decorated with flower. जैसे दूल्हे की गाड़ी को हमने देखते हैं कि सजाई गई होती है फूलों से. So she took one flower from that car and she stuck into her hair. वो अपने बालों में लगा लेती है. So after that they did not go inside the marriage hall. वो अंदर नहीं जाते हैं. She took the value behind the hall. वो जो marriage hall होता है उसके पीछे ले जाती है. Where they saw the garbage bins, कचड़े पात्र वहां पे garbage bins पड़े होते हैं. And the garbage were overflowing. ज्यादा garbage होने की वजह से उससे garbage जो कचड़ा पात्र होता है उससे नीचे गिर रहा होता है. Already there were two goats. दो goats थी already. They were fighting for the banana leaf. जो वहाँ पे banana leaf फेंकी गई थी उसके लिए वो fight कर रही थी. Goats जो थी खाने के लिए. There were also cloud of bees, buzzing around. मक्खियों का मक्खियां भी वहीं पे थी. And no, it was smelly, quite smell was in the air. बिल्कुल जो हवा थी वो बिल्कुल इसमें स्मेल आ रहा था. और इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है. If you have seen garbage around the cities, you know what is the condition there. वहाँ का condition क्या होता है. So she took the value there. अब आप स्टूडेंट्स यहाँ पे आप सोचो कि the things we just never imagine to touch, उस चीज को जो हम टच करने के इमेजिन नहीं कर सकते हैं. From there they had to eat food. Or they generally, it is the reality, the rag picker sometimes have to feed their stomach. कभी कभी उनको अपना पेट भरना पड़ता है उस खाने को खाकर जिसको हम कभी सपने में भी छूने की भी बात नहीं कर सकते हैं. जो जूठा होता है, लेफ्ट ओवर खाना जो होता है, फेंका गया होता है. They have to eat sometimes the same food. वही खाना उनको खाना पड़ता है to survive, जिंदा रहने के लिए. So same thing happened as they reached their values. Jaya started searching food. So she found a smashy, perhaps word I am not getting, a banana. एक उसको banana मिलता है. She just threw towards the वेलू की तरफ फेंकती है. She also found a vada वड़ा उसको मिलता है. वड़ा अगर जैसे हम लोग आलू चप हमारी तरफ बनता है, सो इट इज अ तमिल डिश. सिमिलर टाइप ऑफ डिश जो वहाँ बनती है उसको वड़ा वहाँ बोला जाता है. सो एक वड़ा और जो एक है बनाना वो मिलता है. सो एज सी गिव इट टू द वेल्यू टू इट, जैसे वो वेल्यू को खाने के लिए देती है, ही बिकम एंग्री, वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है. डू यू थिंक आई एम डॉग, वो कहता है तुमको क्या लगता है मैं कुत्ता हूँ, दैट आई विल eat all these leftover, कि मैं छूटा हुआ खाना खाऊंगा. So now here the Jaya tells you this is exactly what you have to eat. तुम्हें यही खाना पड़ेगा until you have your own money and you can buy items of your choice, then you can eat. तुमको तो तब तक यही खाना पड़ेगा जब तक तुम्हारे पास अपना खुद का पैसा नहीं है और तुम अपनी चॉइस का खाना नहीं खा सकते हो. So you have to survive on these. तुमको इन्हीं पे जीना पड़ेगा. Then he tells that I have in my life, Velu tells her that in my life I have never eaten leftover foods. कभी भी मैं जूठा खाना नहीं खाया हूँ. So how can I eat these? But since he was very you can say very troubled by hunger, वो भूख से बहुत परेशान था. So he anyhow somehow managed to eat it. कैसे भी उसको खाता है. As he ate those one vada and one banana, he felt relief. उसको थोड़ा राहत महसूस होता है. And such was his hunger that he could have eaten 10 times more. अगर उस समय उसको इतनी भूख लगी होती है कि वो 10 गुना खाना ज्यादा खा सकता था. उस तरह के जो वड़ा है बनाना है वो खा सकता था. But since there was no more, लेकिन वहां पे उससे ज्यादा एक वड़ा और एक बनाना के अलावा कुछ नहीं मिलता है. And if some more banana Jaya found, but she ate herself. वो खुद वो खा जाती है. So now after this she tells that don't think that everything is over. सब कुछ खत्म नहीं हुआ है. It's just a lunch. ये तो अभी it's just a you can say tiffin. अभी तो ये breakfast है, tiffin है मान लो. If you want to take lunch, अगर तुम्हें lunch भी लेना है तो you stay here. You will get lunch also here. But now I have to go because the sack is
filled, मेरा जो बोरी है वो भर चुका है, and I have to go to house and I need to get one empty sack so that I can start my work again. मुझे घर जाना पड़ेगा और दोबारा एक खाली बोरी लानी पड़ेगी ताकि मैं अपना दोबारा काम शुरू कर सकूं. But if you want to stay here, you stay, you will get the lunch as well. तुमको यहाँ रुकना है तो रुको, तुम्हें लंच भी यहाँ खाने को मिल जाएगा अगर तुम, if you are still hungry. So after she started going, but Velu was in very, panicked. He became panicked that where I will go. I don't know anyone. I don't know about this place. If you are going, then where I will go? तुम जा रहे हो तो मैं कहाँ जाऊँगा? So after that, she tells, if you want to come with me, you come. And but in according to your story of the book, students, still here the Velu had not, or you can say Velu did not know the name of the girl. So here he asks girl about her name, उसका नाम पूछता है. Now she tells that her name is Jaya, and now they started going towards her house. यहाँ से फिर वो कहाँ जाते हैं? उसके घर के लिए जाते हैं. So I hope, but problem is that students, we have very little time. So one part is left, and one part I think it would be better if I explain in the next chapter. अगर in next class, beg your pardon, next class में सही रहेगा अगर मैं उसको पढ़ाऊँ, because time कम है. So I have completed 2 parts. 2 parts मैंने पूरा किया है. If still there are 5 minutes, 5 मिनट और है. अगेन मैं दोनों पार्ट्स की स्टोरी को समराइज कर देता हूँ ताकि जिसको भी अगर समझ में नहीं आया दोबारा समझ ले. पहले पार्ट में हमने देखा कि जो वेलू है, हाउ ही रिच चेन्नई, चेन्नई कैसे पहुंचता है. he was he sat on a bench on the platform, वो एक बेंच पे बैठता है. So many people were around him. People, they were watching TV, and so there he met a girl, Jaya. वो जया नाम के एक लड़के से मिलता है. Who is a rag picker, जो कौन होती है? एक रैग पिकर होती है. And after that, after from there he went behind her. वो उसके पीछे जाता है, उसके साथ कह लो आप, उसके साथ जाता है. So in the second part, they kept walking. वो जाते हैं, एक ब्रिज से होकर गुजरते हैं. होल्डिंग्स कुछ आती है, वहां से होकर जाते हैं. सेंट्रल जेल भी उसी बीच में वो देखते हैं. और इसके बाद टहलते हुए लगभग 1 घंटा टहलने के बाद वो कहाँ पहुंचते हैं? एक मैरिज हॉल होता है जिसका नाम होता है राज राजेश्वरी प्रसन्ना मंगलम मंडपम, कल्याण, बेग पार्डन, कल्याण मंडपम. मैरिज हॉल होता है, वहां वो पहुंचते हैं. सो वहां पे एक शादी हो रही थी. वहां पे वो हॉल के पीछे जाते हैं जहाँ पे कचरा पड़ा होता है, और वहां से कुछ खाने को जया जो है उसको कुछ खाने को देती है. लाइक वड़ा एक देती है, एक बनाना देती है, वहां से मिलता है उसको तो खाने के लिए. सो आफ्टर दैट जया जब जाने लगती है तो वो भी कहता है कि मैं भी चलूंगा. सो यहाँ से वो उसके घर जाएंगे. सो दिस व्हाट, वेयर वाज हर हाउस, हाउ डिड दे लिव देयर, कैसे वो लोग वहां पे रहते थे, क्या कंडीशन था. एंड लास्टली इन द थर्ड पैराग्राफ व्हाट हैपेंस, क्या होता है, वी विल स्टडी ऑन ट्यूसडे. ट्यूसडे को हम पढ़ेंगे, मैं एक्सप्लेन करूंगा. सो इफ यू हैव डाउट, any sort of doubt regarding the first part and the second part, you can ask your question. आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो. Now I am